So first, we discuss that how to install the Java. So Java you have to download first, and then you have to install it. For example, I have this folder name as JDK. I copy this on the C drive. So here I put it. So on C drive, I put my Java folder, which have the different folders as well as the Java commands which are used to compile and run the Java programs. So I store this file into the C drive. So I take this path and I have to set the path. So how I set the path? So for that, I just go to the my computer, go to the properties, and in the setting, I just say the path. So here I just say the path. So it give me different available paths. So if I want to set the path of the Java, then there is a concept of environment variable. So you can edit any path or you can create. So here I just put this path and I can say okay. So my new path is also added. So where it is a C drive, JDK and bin. So what is the advantage of this? मुझे इससे benefit क्या मिलेगा? So benefit is that if I go to any drive, that is C drive, D drive, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने कोई भी ओपन कर दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सी ड्राइव के अंदर कहीं पे हूँ, तो जावा सी की कमांड यहाँ पे होती है क्या? यस. तो यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर सी ड्राइव के पास चले गए आप, तो ये सी ड्राइव. अभी मैं सी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर भी बनाना चाहता हूँ. सो आई से मेड एमडी and I say Java examples. So it is just one folder created. I just say CD. CD stand for change the directory to the Java example. And so here in this folder, I have to save my file. So here I have this file, that is a file copy dot Java. So this file is now copied to the folder name as Java example. So on C drive, I have the one folder which I just created. So in this folder, I just save this file. So now how to compile and how to run the program. So if I have to compile the program, Java CF copy, that is the one dot Java. So this is a concept to compile the program. So if okay, all things are okay, I say run Java FCOPY copy 1. And here I mention the abc.txt as my file. In this file, I have to submit some data from the command line. So just I say enter. Yes, okay. Now first is a compile program and here it is a run program. But at the time of running, I have to give some abc.txt as a file name, because in my program, I just take the advantage of command line argument. So what is this command line argument? If you want to give some file name from the command line at the time of running the program, so what is my program name? File copy is my program name at the time of running. जब ये program में run करना चाहता हूँ, तब argc ये जो command line है, इसमें मैं abc.txt की फाइल भेज रहा हूँ. So abc.txt is an argument. तो कमांड लाइन आर्गुमेंट से मैंने भेज दिया. अब ये फाइल के लिए मैं गेट डेटा करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे गेट डेटा? सी हियर एंटर द नेम. तो फॉर एग्जांपल हमने कर दिया ए, ये नेम हो गया, और एंटर द नंबर 101. तो ये एक रिकॉर्ड हो गया. इफ यू वांट टू यस वांट मोर रिकॉर्ड, यस, सो देन बी
Again, I say 102. So it is a second record. Now more record years. So in this way, I just enter the three records, and that is a 1, 2, 3. Finish. Now I stop. So here all the records are entered into one file named as ABC. So what is the process? So first you enter the data from keyboard to memory for the file that is abc.txt. So where is the file? File कहाँ पे है हमारी? हार्ड डिस्क के अंदर. डेटा कहाँ से एंटर होगा? कीबोर्ड टू रैम. रैम में वो किसी वेरिएबल में रखेंगे और बाद में वो फाइल को जाएगा, और बाद में किसी फाइल, एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फाइल से रीड करना पड़ेगा और बाद में दूसरी फाइल में राइट करना पड़ेगा, और लास्ट में हमें डिस्प्ले करना है तो रैम टू मॉनिटर. तो टोटल ये प्रोग्राम के अंदर टोटल फ्लो ऑफ द डेटा आ चुका है. कीबोर्ड टू रैम, रैम टू हार्ड डिस्क टू अगेन रैम, एंड रैम टू मॉनिटर. तो ये सभी चीजें एक साथ देखने के लिए पहले हम देखेंगे कीबोर्ड से रैम कैसे डेटा एंटर हो गया. तो देखो ये फाइल का नाम है abc.txt. अब ये फाइल कहाँ पे है? गेट डेटा के लिए है. तो गेट डेटा मतलब दैट इज फ्रॉम द कीबोर्ड टू रैम आपका डेटा आना चाहिए. सो वेयर इट इज गेट डेटा. गेट डेटा देखो ये फंक्शन आ गया गेट डेटा. तो क्या क्या कर दिया आपने इसके लिए? कीबोर्ड से लेना है तो कीबोर्ड से लेने के लिए आपके टोटल एक लाइन है आपके पास. क्या नाम की लाइन है? पढ़ो एक बार ये. that is a buffer reader. Br is equal to new buffer reader in the bracket new input stream reader in the bracket system not in. इसका क्या मतलब है? कीबोर्ड से जब भी टाइप करोगे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा. ये ऑब्जेक्ट आप किसको पैरामीटर भेज रहे हो? इनपुट स्ट्रीम रीडर को. इनपुट स्ट्रीम रीडर का भी ऑब्जेक्ट बनेगा और ये भेजोगे आप बफर रीडर को. तो लास्ट में किसका ऑब्जेक्ट बन गया? बफर रीडर का. तो हमें बनाना किसका है? बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि उसके पास एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज रीड लाइन. फिर से कीबोर्ड को टाइप करोगे तो सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट बनेगा. ये ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर आप भेजते हो इनपुट स्ट्रीम रीडर को, इनपुट स्ट्रीम रीडर का, बफर रीडर को, और आखिरी में आपने बनाया बफर रीडर का ऑब्जेक्ट. क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास एक मेथड है कॉल्ड एज रीड लाइन. तो वो आपको कीबोर्ड से रैम में एक स्ट्रिंग लेके देगी. तो स्ट्रिंग के लिए डायरेक्ट फंक्शन है रीड लाइन. तो अगर डायरेक्ट रीड लाइन लेना है तो आप डायरेक्ट रीड लाइन ले रहे हो. बट अगर किसी इंटीजर में या किसी चीज में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ क्लासेस यूज करने पड़ेंगे. तो क्या क्या है? अगर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास पारसेंट नाम का फंक्शन है. ये किसके अंदर रखा है? इंटीजर नाम के क्लास के अंदर. तो जिस क्लास का नाम और डेटा टाइप का नाम सेम होता है उसे हम रैपर क्लासेस बोलते हैं. तो ये वो लॉजिक है. जब तक आप यस बोलते हो तो इंटर नेम एंटर नंबर, इंटर नेम एंटर नंबर. तो ये कीबोर्ड से रैम में आपका डेटा एंटर होने लगा है. अभी दूसरा पार्ट क्या है? नाउ वी वांट टू दैट इज फ्रॉम रैम टू, दैट इज रैम से लेकर आपको भेजना. ये सभी प्रोग्राम जब करते हो तो आप ट्राई कैच आपको देना जरूरी है. सो व्हाट इज अ ट्राई कैच? ट्राई मतलब अगर आपको लगता है कि इस लाइन के अंदर कहीं पे भी आपको एरर आने की संभावना है तो वो कोड आप ट्राई के अंदर लिखोगे. और कैच एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि क्या एरर आ चुका है. तो जो भी एरर आता है रन टाइम उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे हैंडल करते हैं. दैट इज यू जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द एरर, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्राई एंड कैच. दूसरा पार्ट है दैट इज व्हाट. तो अभी कॉपी करना है एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है. तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए लॉजिक क्या है? एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए तो दैट इज व्हाट, वन फाइल आपको ओपन करनी पड़ेगी रीड मोड में और दूसरी फाइल आपको ओपन करनी पड़ेगी राइट मोड में. सो सी हियर व्हाट इज अ रीड. दिस इज अ फाइल क्लास और ये फाइल राइटर. तो याद कैसे रखोगे? देखो यहाँ पे मैं फिगर में भी बता रहा हूँ. रैम से लेकर हार्ड डिस्क जा रहा है तो आपको बोलना है फाइल राइटर. हार्ड डिस्क से लेकर रैम में आ रहा है तो उसको आपको बोलना है फाइल रीडर. फिर से रैम टू हार्ड डिस्क फाइल राइटर, हार्ड डिस्क टू रैम फाइल रीडर. तो ये प्रोग्राम में हमें करना क्या है? एक फाइल से रीड करना है और दूसरे में राइट करना है. सो हियर दैट इज व्हाट, आप फाइल राइटर मतलब इस फाइल के अंदर आपका कीबोर्ड से लिया हुआ डेटा आपको भेजना है. तो ये आपने गेट डेटा कर दिया. अभी लास्ट में जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, फाइल कॉपी. तो ये फाइल कॉपी नाम का फंक्शन आपको ढूंढना है. तो वेर इज अ फाइल कॉपी? तो दिस इज अ फाइल कॉपी. कौन सी फाइल के अंदर? तो आपने एबीसी यानी ये रीड के लिए फाइल है, और ये फाइल राइटर. देखो ये फाइल राइटर कौन सी है? आउटपुट डॉट टी मतलब ये फाइल हमने नहीं बनाई, बट एबीसी फाइल हमने बनाई है जिससे रीड करना है. तो ये रीडर यानी हार्ड डिस्क टू रैम, राइटर यानी रैम टू हार्ड डिस्क, रीडर यानी हार्ड डिस्क टू रैम, राइटर यानी रैम टू हार्ड डिस्क. और ये आपका एक एक कैरेक्टर रीड हो रहा है और दूसरी फाइल में राइट हो रहा है.
कब तक, जब तक आप -1 नहीं आएगा। मतलब जहाँ जिस फाइल से रीड कर रहे हो उसके एंड में जब तक -1 नहीं आता तब तक वो डेटा आप रीड करते जाओगे। दैट इज हार्ड डिस्क टू रैम, और रैम से अगर हार्ड डिस्क फिर से, यानी ये टोटल प्रोसेस हो गया हार्ड डिस्क टू रैम और रैम टू हार्ड डिस्क। तो ये पूरा फाइल कॉपी का ये लॉजिक हमने यहाँ कर दिया। दैट इज कॉपी द वन फाइल इनटू अनदर फाइल। तो देखो सिंपल क्या है कि ऊपर जो क्लास बनाया फाइल टेस्ट, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके द्वारा फंक्शन को कॉल किए। तो टोटल ये प्रोग्राम क्या है, फाइल हैंडलिंग यूजिंग बफर रीडर प्लस फाइल कॉपी एंड टेक द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड टू रैम, देन रैम टू हार्ड डिस्क, देन हार्ड डिस्क टू रैम अगेन, एंड देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। तो डिस्प्ले के लिए कहाँ फंक्शन है देखो, तो ये डिस्प्ले के लिए फंक्शन है। तो क्या डिस्प्ले करेगा ये, फाइल रीडर क्यों लिया है, तो कौन सी फाइल जो आपको डिस्प्ले करनी है, हार्ड डिस्क टू रैम पहले आना चाहिए एंड देन रैम टू मॉनिटर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, हमें एक फाइल को रीड करना पड़ेगा, दैट इज abc.txt या फिर output.txt, जो भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पे भेज दो। और जब तक वो फाइल -1 नहीं होता, यानी टिल द एंड नहीं जाता, तब तक आप उस हार्ड डिस्क से एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हो, और जो रीड किया हुआ कैरेक्टर है वो आप प्रिंट कर रहे हो। बस ये करते करते आपको कहीं पे एरर आने की संभावना है, तो आप ट्राई के अंदर लिखो, और अगर एरर नहीं है तो ये आपका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा आउटपुट भी देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो टोटल फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल और ये रन हो रहे हैं। तो abc.txt, यानी कोई भी दूसरी भी फाइल ले सकते हो आप। तो फिलहाल अभी abc.txt के अंदर हमारा डेटा जाएगा, और बाद में ये कीबोर्ड से रैम में, मतलब कीबोर्ड से रैम में जा रहा है एंड देन रैम टू हार्ड डिस्क जाएगा। तो देखो अभी ये क्या करेंगे, इसके अंदर अब एक एक नाम लेंगे। जैसे CHIN सचिन नाम का है, और ये 1001। ये फिर से दूसरा राजेश नाम का लड़का है जिसका है 1002। और अभी तीसरा भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह हमारा एक तीनों रिकॉर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स या जो भी आपके रिकॉर्ड्स है आपके यहाँ एंटर होते जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो देखो ये प्रोग्राम पहले हम कंपाइल करेंगे। तो फर्स्ट इट गेट कंपाइल्ड एंड देन इफ यू वांट टू रन, सो अगेन हियर इज अ रन। तो रन के लिए वो क्या मांगेगा, तो इट आस्क मी द फाइल नेम जिसके अंदर मुझे कॉपी करनी है। तो ये समझो ये इनपुट फाइल है, ऐसा कुछ इनपुट 1.txt। तो ये फाइल को मुझे रीड करना है। तो देखो इसके लिए एंटर द नेम। तो फिर से ये क्या क्या नाम है समझो, PPP नाम का लड़का है और उसका नंबर है 111। फिर से दूसरा BBB नाम का लड़का है 222, उसका नंबर है। सो इन दिस वे द नंबर ऑफ वर्ड्स टू आ गए, नंबर ऑफ ये सब, तो फाइल कॉपी टू द आउटपुट, ये सभी हो गया। तो इस तरह से हमने मोर रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए तो वो बाहर आ गए। तो व्हाट इज दिस, सो इट इज जस्ट अ प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर फाइल। तो ये है फाइल के लिए क्लास बनाया हमने। ये है कीबोर्ड से इनपुट, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये बफर रीडर। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना क्यों है, क्योंकि बफर रीडर के ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है कॉल है रीड लाइन। रीड लाइन कहाँ से कहाँ पे आती है, दैट इज ए कीबोर्ड टू रैम में आती है। और ये कीबोर्ड से रैम, यानी ये फिगर में आप देख रहे हो कीबोर्ड से रैम, रैम से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क टू रैम एंड रैम से मॉनिटर। तो कीबोर्ड से रैम में लेने के लिए हमारे पास बफर रीडर है, रैम टू हार्ड डिस्क भेजने के लिए है दैट इज अ राइटर, राइट मतलब फाइल राइटर। हार्ड डिस्क टू रैम लेने के लिए रीडर, और रैम से फिर से मॉनिटर करने के लिए प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये चारों स्टेप का यूज करके हमने पूरा कीबोर्ड टू रैम, रैम टू हार्ड डिस्क टू रैम, रैम टू मॉनिटर की प्रोसेस करती है। दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ फाइल हैंडलिंग एज वेल एज बफर रीडर। तो देखते हैं कैसे आउटपुट आता है।